we are going to start with a new module that is Google Search Console. So Google Search Console is something like say it's an application which will help us to detect what is the problem in our website that Google has detected. So we are doing SEO, but in that also there could be some problems. We might feel that we have done everything, but sometimes it happens that Google might find some problems in our website. So for that reason, say our results are not coming in search engine. So now what we can do is we have to go to Google and search for Google Search Console. So then this website will come up. So you can click on this website and then you can click on start now, and then you can log in with your Gmail account. So now I'm already logged in over here because I am using auto login. And then this is the dashboard overview of Google Search Console where we will get all the reports of our website. But now, before we start to use this, how do we connect Google Search Console with our website? So for that, over here we can see the websites that I've added over here. So over here we can add a new property. So you can add many websites over here, not an issue. So I click on add property, and then over here you can see URL prefix. So this is with the help of domain. We can verify with the help of domain, or we can verify our website with hosting. So hosting is a better option. If you go with domain, then there are chances that your site can go down if you do not do it properly. So that is very risky. So we do not touch domain. We use only URL prefix. So now I will enter the website which I want to integrate with Google Search Console. So I'll just add a website over here. So I've added, and then I will say continue. So now it will verify the property. So now over here it says that ownership is auto verified. So ownership is auto verified because say over here say the HTML file when you add a website over here for the first time, at that time it will not be verified. I just removed this website sometime back. uh, So this is over here like I need to verify my website. How do I verify my website? So they will provide us with an HTML file which we can upload it on our server. So that file is already there on my server. That is the reason it is saying that this is ownership is auto verified. So usually you get a download option. So once you download that file, then over here there would be a button called as verify. So once you upload that file to your server, so I'll just say I'll just show you. I'll just log into my this website over here through FTP, and I go to the root सर server. सर Hello. Yes. सर हिंदी में ये दे दो ना क्या हम आवाज नहीं आ लेक्चर रही है? क्या? समझ नहीं आ रहा। हिंदी में दो ना हम लोगों को ए, लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, हिंदी में ना, हाँ हाँ, राइट। सॉरी, मैं भूल गया था क्योंकि सारे लेक्चर्स में इंग्लिश में लेता हूँ ना, इसके लिए। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले ये सर्च इंजन, ये गूगल सर्च कंसोल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम लोग एसईओ वगैरह करते हैं, लेकिन एसईओ करने के बाद भी हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आती है। ये क्यों नहीं आती है? क्योंकि गूगल ने हमारी वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगी। तो अभी ये जो से गूगल ने हमारी वेबसाइट पर क्या क्या प्रॉब्लम देखे हैं,
तो ये हम लोग करते हैं। तो अभी ये यूज़ करने से पहले इसको हमारे वेबसाइट के साथ में अटैच करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी करते हैं। और ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद में यहाँ पर हम लोग यूआरएल ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट का, जो मैंने अभी किया। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और फिर वो वेरीफाई करता है कि ये हमारी वेबसाइट है कि नहीं। तो इसके लिए वो एक HTML फाइल देगा और वो HTML फाइल हमको हमारे सर्वर पे ऐड करनी होती है। तो वो ऐड करने के बाद में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है और वेरीफाई हो जाती है। और उसके बाद में हमको यहाँ पर 2-4 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। तो अभी मैंने वेबसाइट ऐड की है, तो वो वेबसाइट नहीं, हम लोग ये वेबसाइट देखेंगे क्योंकि वो हमने अभी जस्ट ऐड की है। तो उसको उसका डेटा आने के लिए कम से कम एक 3-4 दिन लगेंगे। तो हम लोग फ़िलहाल जो मेरी वेबसाइट है वो हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि चेक करना तो सब एक ही जैसा होता है। तो ये पूरा वेबसाइट, चाहे हम कोई भी वेबसाइट से हम लोग ये सीखे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मेनू वगैरह तो सेम ही रहेगा सभी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहला होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब डैशबोर्ड, तो जिसके अंदर हमें एक ऊपर ऊपर से पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारी वेबसाइट के अंदर 16 टोटल वेब सर्च और क्लिक हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि 16 बार लोगों ने हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में देखी है और उसको क्लिक किया है। तो ये हमें पता चलता है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट रिपोर्ट होता है ये कवरेज रिपोर्ट। तो कवरेज रिपोर्ट कवरेज रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि ये कवरेज मतलब हमारी वेबसाइट के अंदर सब ठीक चल रहा है कि नहीं। अभी अगर जैसे गूगल के पैरामीटर्स के बाहर, गूगल के जो भी उन्होंने हमें कंडीशंस हमें दी है, वो कंडीशन के बाहर अगर हमारी वेबसाइट चली जाती है, मतलब कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग इसके अंदर हमें एरर दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ एरर वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें पता चलता है कि 1 पेज विथ एरर। तो बाकी 316 पेज सही है, सिर्फ एक पेज के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है। तो ये एक पेज के अंदर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो 2 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर 21 मई को वो प्रॉब्लम था। उसके बाद में वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर 4 एरर बता रहा था। तो अभी आज की डेट के अंदर यहाँ पर ये कौन सी डेट है, 28 जून। 28 जून तक ये एक एरर था। बाकी एरर ऑटोमेटिकली चले गए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो अभी एक पेज के अंदर एरर है, तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एरर है। तो अभी यहाँ पर बता रहा है कि एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर जो है मोबिलिटी इशू। मोबिलिटी इशू के मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग हमारी वेबसाइट जो है वो हम गूगल से, आई मीन हमारी वेबसाइट को अगर हम मोबाइल से देखते हैं, तो मोबाइल के अंदर क्या हमारी वेबसाइट सही तरीके से दिखाई दे रही है कि नहीं, ये हमें पता चल रहा है कि मोबाइल पे एकदम उसके अंदर अगर हम सर्च कर रहे हैं तो आ रही है कि नहीं गूगल में। और वेबसाइट मोबाइल के अंदर देखने के लिए कोई सही है कि नहीं, उसका लोगो बराबर आ रहा है कि नहीं, उसका कंटेंट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये इसके लिए, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स रैंडमली कुछ रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो कोई भी रिजल्ट उठा के देखते हैं वो लोग, तो यहाँ पर 30 गुड है और फेलिंग में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो मतलब वेबसाइट मोबाइल पे एकदम परफेक्टली दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस। तो पेज एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है कि जो पेज होता है वो कितना जल्दी लोड होता है, वेबसाइट फास्ट चलती है कि नहीं, वैसा ये सब इसके अंदर पेज एक्सपीरियंस के अंदर बताता है। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। तो ये सारे रिपोर्ट हम लोग डिटेल में जाएंगे। ये जो भी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारे रिपोर्ट्स है वो 1 बाय 1। तो ये ओवरव्यू के अंदर तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हमें सब पता चलता है।
और फिर बाद में आता है यहाँ पर कोर वेब वाइटल्स। तो कोर वेब वाइटल्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका स्कोर क्या है। तो 0 to 100 का स्कोर होता है, तो 0 to 49, फिर 50 to 79, ऐसा अलग अलग स्कोर होता है। तो वो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो भी हमें बताता है। तो वो भी हम लोग डिटेल में चेक करेंगे जब हम कोर वेब वाइटल्स पे जाएंगे वहाँ पर, तभी वो रिपोर्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तभी हमको पता चलेगा। फिर एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट मतलब कि जो एक्स्ट्रा अच्छा फीचर्स जो है हमारी वेबसाइट के अंदर वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम मतलब एक जैसे रोड मैप होता है कि हम लोग कहाँ पर है। जैसे अगर हम लोग गूगल मैप खोल के देखते हैं और फिर हमारा पोजीशन वहाँ पर पॉइंटर दिखाता है कि हम लोग ये जगह पर है, तो वो कैसे ब्रेड क्रम होता है। तो इंटरनेट के अंदर भी, वेबसाइट के ऊपर भी हमें पता चलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अमेज़ॉन का वेबसाइट है। तो अमेज़ॉन के वेबसाइट के अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर चलो मैं ये प्रोडक्ट देखता हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट, अच्छा इसके अंदर बता नहीं रहा है, तो ठीक है मैं इसको क्लिक करता हूँ। और इसके अंदर ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो होता है इसको हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। तो हमको पता चलता है कि हम एप्पल सेक्शन के अंदर, ये सब कैटेगरी एयरपोर्ट्स के अंदर है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि हम वेबसाइट के ऊपर कौन सी जगह पर है। तो यहाँ पर मैं और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के अंदर ऑल मोबाइल फ़ोन्स, और ऑल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम लोग कोई पर्टिकुलर इसमें जाते हैं। तो चलो इसको क्लिक करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो अभी यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर पता चलेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर है, और उसके अंदर जो होता है इसको ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग पेज या कौन से कैटेगरी पे है। तो इससे इससे हमें ये पता चलता है कि हमको अगर नेविगेशन करना है तो ये हमें पता ही इसके अंदर चलता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये एक एग्जांपल है। तो उसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। और फिर बाद में साइट लिंक सर्च बॉक्स। तो साइट लिंक सर्च बॉक्स क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट के अंदर जो सर्च बॉक्स होता है, वो सर्च बॉक्स सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये उसके लिए पता चलता है। तो यहाँ पर भी वैलिड है 30, और एरर कुछ भी नहीं है। तो ये एकदम परफेक्ट है इसके अंदर। तो ये एक ऊपर ऊपर से हमें जानकारी मिलती है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, गूगल ने हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट किया है कि नहीं। तो ये इससे पता चलता है। अभी हम डिटेल रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर अभी हम परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो परफॉर्मेंस के अंदर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर टोटल क्लिक कितना हुआ है। तो वेबसाइट के ऊपर नहीं, बेसिकली ये जो क्लिक है ये सर्च इंजन से हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है। अभी जैसे मान लो कि मैं सर्च इंजन के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं हेल्पोपीडिया टाइप करता हूँ, और फिर यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ रही है। तो ये जो लिंक है, इस ये लिंक को क्लिक करके लोग मेरी वेबसाइट पर जो आते हैं, ऐसे 16 क्लिक सर्च इंजन से हुआ है। तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये 16 क्लिक जो है ये सर्च इंजन से क्लिक हुए हैं। और फिर टोटल इम्प्रेशन। टोटल इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग सर्च करते हैं तो ये कितनी बार यहाँ पर आया। तो ये कोई लोगों ने कोई भी कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पर मेरी वेबसाइट आई, तो एक बार यहाँ पर ये मुझे वेबसाइट दिखाई दे रही है, तो इसको हम एक इम्प्रेशन बोलेंगे। मतलब कितनी बार मुझे दिखाई दिया, क्लिक किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन मुझे दिखाई कितनी बार दी, तो उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। तो 460 टाइम्स, 63 टाइम्स मेरी वेबसाइट लोगों को दिखाई दी सर्च इंजन के अंदर। और ये जो रिपोर्ट है ये पिछले 3 महीने का है। अगर हमें रिपोर्ट ज़्यादा दिन के लिए देखना है, 12 महीने के लिए देखना है, 1 महीने के लिए देखना है, 7 दिन के लिए देखना है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। और ये 30 जून, ये कल का रिपोर्ट भी अगर हमें देखना है तो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 महीने का भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, 28 दिन का भी रिपोर्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चलता है।
और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो एवरेज सी टी आर का मतलब क्लिक थ्रू रेशियो। तो क्लिक थ्रू रेशियो क्या होता है कि 100 जन में से कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को क्लिक किया है सर्च इंजन से। तो 3.5% मतलब 100 लोग आते हैं, 100 लोग मेरा रिजल्ट देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है सर्च इंजन के अंदर, मेरी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 100 लोगों ने मेरी वेबसाइट देखी, उसमें से 3.5 लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। 3.5 तो एक एवरेज होता है, मतलब कभी कोई ज़्यादा क्लिक करता है, कभी कोई कम क्लिक करता है। तो उस हिसाब से 3.5 एक एवरेज होता है। तो वो हमें यहाँ पर पता चलता है। और फिर एवरेज पोजीशन। तो ये एवरेज पोजीशन क्या होता है? अभी पोजीशन मतलब यहाँ पर देखो, ये वेबसाइट, सभी वेबसाइट एक ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर ये पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं दूसरा, ये तो सारे मेरे ही वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ और यहाँ पर हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो ये देखो, ये पहला रिज़ल्ट है, ये दूसरा रिज़ल्ट है, ये तीसरा रिज़ल्ट है, फिर बाद में ये चौथा रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से एक पेज के ऊपर करीबन 10 रिज़ल्ट होते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी रिज़ल्ट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से एक पेज के ऊपर 10 रिज़ल्ट होता है। तो ये जो पोजीशन जो है, ये कौन से पोजीशन पे है? तो अभी जैसे फर्स्ट पोजीशन पे वेबसाइट कौन सी आई है, यहाँ पर ये वाली वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरह से मेरी वेबसाइट जो है 71.5 एवरेज पोजीशन बता रही है। 7.5 मतलब एक पेज के ऊपर 10 रिजल्ट आता है, मतलब आठवें पेज के ऊपर आठवें पेज के ऊपर पांचवा रिजल्ट मेरा रहेगा। तो ये यहाँ पर ये ऐसा पता चलता है। तो कभी कभी ऊपर भी आता है, कभी ऑटोमेटिकली ये पोजीशन, तो ये रोज हर थोड़े थोड़े घंटे में या हर थोड़े थोड़े टाइम के अंदर चेंज होता रहता है। तो ये पोजीशन फिक्स नहीं रहती है। अभी अगर ये पोजीशन इतनी ख़राब है, मतलब हाँ, मैं ख़राब ही बोलूँगा, उसका रीज़न है कि 71 पेज मतलब आठवें पेज पर मेरा रिज़ल्ट है। तो आठवें पेज के ऊपर कौन जाने वाला है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहला या दूसरा पेज देखेगा। 99% लोग तो पहला ही पेज देखेगा, दूसरे पेज पे कोई नहीं जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल उन लोग को कुछ एकदम ज़रूरी चीज़ सर्च करनी है, तभी वो लोग दूसरे पेज, तीसरे पेज पर जाएंगे। तो आठवां पेज मतलब बहुत ही ख़राब है, बहुत दूर है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें हमारी वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर ऊपर टॉप रैंकिंग के ऊपर आ सके। तो इसके लिए हमें वो कीवर्ड रिसर्च वगैरह हमने देखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर जो हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था, तो वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना पड़ेगा, गूगल ट्रेंड्स यूज़ करना पड़ेगा। ये दो टूल यूज़ करेंगे तो हमें हमारी वेबसाइट के अंदर के लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते। तो ज़्यादा सर्च करते कीवर्ड्स, वैसे कीवर्ड्स अगर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किए, तो मेरी वेबसाइट भी सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर आ सकती है। तो ये ऐसा है। तो ये 71 पोजीशन बहुत ही ख़राब है। तो हमें इसके लिए, हमें ये बताता है कि हमें इसके ऊपर सर्च इंजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये परफॉर्मेंस का रिपोर्ट है। फिर बाद में लोगों को मेरी ये जो वेबसाइट यहाँ पर, मान लो कि ये मेरी वेबसाइट है, तो ये जो मेरी वेबसाइट यहाँ पर लोगों को दिखाई देती है, वो कब दिखाई देती है? लोग यहाँ पर क्या सर्च करते हैं तभी मेरी वेबसाइट दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स है। तो ये सबसे पहला क्वेरीज, क्वेरीज मतलब कीवर्ड्स। तो लोग क्या सर्च करते हैं गूगल के अंदर जब मेरी वेबसाइट आती है? तो यहाँ पर क्या सर्च करते हैं लोग? इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीक्रेट्स, फिर गूगल एसईओ हिडन कंटेंट, अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग, फिर हिडन टेक्स्ट एसईओ। तो ये कभी कभी दिखाई देती है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। तो वो ऊपर नीचे जैसे मैंने बोला, तो वो उस हिसाब से ये पता चलता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये मैं सर्च करता हूँ, तो कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पर अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग मेरी वेबसाइट नहीं दिखाई दे रही है। तो हम्म तो ये नहीं दिखाई दे रही है। इसके अंदर चेक करते हैं कि पोजीशन क्या है। इम्प्रेशंस 35 है इसके अंदर पोजीशन नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट
नहीं दिखाई दे रही है। चलो दूसरे पेज के ऊपर देखते हैं। तो दूसरे पेज के ऊपर भी यहाँ पर नहीं आ रही है। हम्म। तो ठीक है, तीसरे पेज के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूँ। हाँ, ओके। ओके, इसके अंदर भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मेरे कोर्स का नाम है। हम्म। तो अभी यहाँ पर लोगों को ये कीवर्ड से दिखाई दे रही है, तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे दिखाई देगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिजल्ट दिखाई देगा। वो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एड्रेस, ये हमारा ऑटोमेटिक लोकेशन बता रहा है। तो ये अलग अलग लोकेशन के अंदर वो दिखाई देगी। अगर मैं अपडेट लोकेशन करता हूँ तो यहाँ पर कांट अपडेट लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आता है, इसको हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। हम लोग कभी कभी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ इशू है तो कांट अपडेट बोल रहा है। तो ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जब गूगल्स खोलेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लोकेशन बता देगा। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ही मुझे सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो मैं खारगर में हूँ तो खारगर के रेस्टोरेंट सबसे पहले मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि मैं खारगर में रहता हूँ। वो ऑटोमेटिकली मेरा मेरा लोकेशन डिटेक्ट करता है। अगर मेरा लोकेशन ऑफ रहेगा तो वहाँ पर अलाउ लोकेशन का ऑप्शन आएगा ब्राउज़र के अंदर। फिर हम लोग अलाउ करेंगे और फिर बाद में हमारे जगह के रिलेटेड हमें सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बताएंगे। तो वो क्यों लोकेशन पूछ रहा है? क्योंकि वो हमें सही रिजल्ट बता सके कि जब गूगल सर्च अगर मुझे करना है और मैं सर्च करूँगा कि भाई मुझे खाना खाना है, तो मैं रेस्टोरेंट सर्च करूँगा, रेस्टोरेंट्स नियर मी मैं करूँगा। अभी अगर मुझे वो दूसरे सिटी का रेस्टोरेंट बताएगा, अमेरिका का बताएगा या जापान का बताएगा, चाइना का बताएगा या कनाडा का बताएगा, तो मैं क्या वहाँ पर जाने वाला हूँ सिर्फ एक खाना खाने के लिए? नहीं ना। मैं तो अपने नज़दीक से नज़दीक जो भी रेस्टोरेंट रहेगा मैं वहीं पर खाना खाना चाहता हूँ। तो इसके लिए वो लोकेशन डिटेक्ट करना चाहता है कि हमारा लोकेशन क्या है। फिर उस हिसाब से हमें वो सर्च दिखाई देगा। अभी अगर सेम कीवर्ड अगर कोई दूसरे सिटी से करता है, अभी जैसे कोई वाशी से करता है, कोई पनवेल से करता है, या कोई कोपरकेरना से करता है, कोई बॉम्बे से करता है, तो कोई अंधेरी से करता है, कोई दादर से करता है, कोई वर्ली से करता है। तो ऐसा अलग अलग जगह से लोग सर्च करेंगे तो उनको उनके नज़दीक में जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो पता चलेगा। वो हमारे यहाँ का, मैं यहाँ पर ये सर्च कर रहा हूँ इसके लिए सबको वही रिजल्ट आना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों को अलग अलग रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसके लिए अभी मैं जो सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मुझे पता मेरे यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब लोग अलग अलग जगह से ये सारे कीवर्ड सर्च करते हैं तो मेरी वेबसाइट दिखाई देती है। ऐसी ज़रूरी नहीं कि मेरी वेबसाइट है तो मुझे दिखाई देनी चाहिए। वो तो अलग अलग जगह पे कौन सा कितना कंपटीशन है कीवर्ड का, उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये सारे रिजल्ट से लोगों को हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। अभी उसके अंदर कौन से कीवर्ड से कितना लोगों ने क्लिक किया वो यहाँ पर पता चलता है, और कितनी बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर दिखाई दी वो हमें पता चलता है। अभी जैसे ये डिजिटल अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग लोगों को 35 बार दिखाई दी जब लोगों ने ये सर्च किया। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीक्रेट लोगों को 60 टाइम्स दिखाई दिया। गूगल्स एसईओ हिडन कंटेंट तो ये 49 टाइम्स दिखाई दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड से कौन से कीवर्ड से मेरी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर दिखाई देती है। अभी ये रिपोर्ट का मैं क्या करूँगा?
तो ये रिपोर्ट मुझे ये फ़ायदा होगा कि लोग ऑलरेडी ये सारे कीवर्ड से मेरी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स को मैं यूज़ करके मेरी वेबसाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करूँ। ये सारे कीवर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस के अंदर मैं यूज़ करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमने जो सीखा था एसईओ के अंदर 2 से 3% से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर 500 वर्ड्स का कीवर्ड ये मेरा कंटेंट है, 500 कीवर्ड्स का 500 वर्ड्स का मेरा ब्लॉग है, तो मुझे कितनी बार यूज़ करना है? अगर मैं 3% यूज़ करता हूँ तो 15 टाइम्स मुझे वो कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये सारे कीवर्ड जो है मुझे 15 से 20 बार या 10 बार भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा, डिपेंडिंग के लेंथ कितना है कंटेंट का। तो ये रिपोर्ट मुझे ये काम देता है यहाँ पर। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 23 कीवर्ड्स है। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये देखो, ये सारे कीवर्ड से मेरी वेबसाइट लोगों को सर्च इंजन के अंदर दिखाई देती है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैं यूज़ करके मेरी वेबसाइट को और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। फिर ये सारे पेजेस कौन से आते हैं, जब लोग सर्च करते हैं मेरी वेबसाइट तो कौन से पेजेस यहाँ पर आते हैं। तो ये देखो, ये सारे लिंक्स है, ये सारे पेजेस जो है ये सर्च इंजन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये एफिलिएट का पेज है, ब्लॉग है, फिर यहाँ पर ये भी ब्लॉग है, यहाँ पर ये कोर्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को अलग अलग पेज दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पेजेस मेरे वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन के अंदर आ रहे हैं। तो अभी मैं पता कर सकता हूँ ना, इससे मुझे पता चलेगा कि बाकी के कौन से पेजेस नहीं आ रहे, उसको मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने हैं। तो इसके लिए ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये पेजेस को मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा, वो जो क्वेरीज हमने देखे, वो जो कीवर्ड्स हमें मिले, वो कीवर्ड से हमें पता चलेगा कि वो सारे कीवर्ड्स हमें ये सारे पेजेस के अंदर यूज़ करने हैं। और बाकी पेजेस जो सर्च इंजन के अंदर या ये लिस्ट के अंदर नहीं है, जो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी है, तो वो पेजेस के अंदर भी ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके मैं अपना एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। या उसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो यूज़ करके मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर कोर्सेज करके आता है। तो कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि ये कंट्रीज है, सॉरी कोर्सेज नहीं है, कंट्रीज है। तो कौन से कंट्रीज से कितनी बार मेरी वेबसाइट दिखी और कितनी बार लोगों ने क्लिक किया। तो ये इंडिया है, इंडिया में मेरी वेबसाइट पिछले 3 महीने के अंदर 100 बार मेरी वेबसाइट आई और उसमें से 13 लोगों ने क्लिक किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से 62 टाइम्स मेरी वेबसाइट दिखाई दी और एक बार लोगों ने क्लिक किया। वियतनाम से 22 बार आई और एक बार क्लिक किया। कतार से एक बार इम्प्रेशन आया और एक बार क्लिक किया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट की कौन से कंट्री से लोग देखते हैं। यहाँ पर 71 कंट्रीज़ है। तो 71 कंट्रीज़ कौन सी है, तो ये देखो, यहाँ पर इंडिया से लेके इतनी सारी कंट्रीज़ है। और यहाँ पर पता चलता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितनी बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई। तो ये सारी जगह से हमारी वेबसाइट आ रही है। तो ये 71 कंट्रीज़ है जहाँ से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से कंट्री से हमारी वेबसाइट लोग देखते हैं। फिर डिवाइसेस, डिवाइसेस का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट से लोगों ने हमारी वेबसाइट देखी। तो डेस्कटॉप से कितने लोगों ने कितनी बार सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट आई, तो 331 बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई जब लोगों ने डेस्कटॉप या लैपटॉप से सर्च किया रहेगा, और 11 बार उसमें से लोगों ने क्लिक किया है। जब लोगों ने मोबाइल डिवाइस में से हमारी वेबसाइट देखी तो कितनी कितनी बार सर्च किया लोगों ने गूगल के अंदर। तो मोबाइल से जब लोगों ने सर्च किया तो 130 टाइम्स मेरी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई और उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया। और टैबलेट से कितने कितने लोगों ने सर्च इंजन के अंदर सर्च किया, तो 2 लोगों ने सर्च इंजन में सर्च किया और 2 बार मेरी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई, लेकिन किसी ने क्लिक नहीं किया है। तो उसको सिर्फ इम्प्रेशन मिला। तो ऐसा ये पता चलता है कि कौन से डिवाइसेस से लोग हमारा वेबसाइट सर्च इंजन में ढूंढते हैं। फिर सर्च अपीयरेंस, तो इसका डेटा तो नहीं रहेगा क्योंकि ये रिपोर्ट नया है, तो ये अभी तक फ़िलहाल इसका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और फिर बाद में डेट, तो ये डेट वाइज, तो यहाँ पर हमको 3 महीने का रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, तो 3 महीना रोज़
हर एक दिन के अंदर कितनी बार हमारी वेबसाइट दिखाई दी और कितने कितने लोग कितनी बार क्लिक हुआ है, लोगों ने कितनी बार सर्च इंजन के अंदर क्लिक करके लोग हमारी वेबसाइट पर आए, तो ये हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखो 28, 29, 27, 26, 25, 24, फिर बाद में यहाँ पर 23 है, 22 है, 21 है, तो इस हिसाब से पिछले 3 महीने का रिपोर्ट यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हमने 100 कर दिया तो ये पूरा 3 महीने का रिपोर्ट हमें बताता है कि कौन से दिन में कितनी बार हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई है, तो ये हमें पता चलता है। तो ये हो गया सर्च, ये अपना डेट्स। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेरीज़ वाला रिपोर्ट है, जिसके थ्रू हमें ये सारे कीवर्ड्स मिलते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जिससे हमें हमारी वेबसाइट का एसईओ और स्ट्रांग होगा। तो ये होता है परफॉर्मेंस, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है, ये उसका रिजल्ट है। फिर बाद में यूआरएल इंस्पेक्शन। अभी यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि मुझे सबसे पहले तो हमने एसईओ किया हमारी वेबसाइट का, लेकिन एसईओ करने के बाद में क्या हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आई है कि नहीं, या हमने सीखा था कि गूगल बॉट जो होता है वो पूरा डेटा और लिंक्स वगैरह सब कलेक्ट करके जाता है हमारी वेबसाइट से। तो हमें ये पता करना है कि क्या सर्च इंजन का बॉट मेरी वेबसाइट पर आया था कि नहीं, और उसने मेरी वेबसाइट से कुछ डेटा लिया है कि नहीं। तो ये मुझे यहाँ पर पता चलेगा, तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर कोई भी पेज, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट सर्च कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर का कोई भी पेज मैं सर्च कर सकता हूँ। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा ये वाला पेज जो है वो सर्च इंजन के अंदर है कि नहीं। तो मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर ऐड किया है, और फिर मैं अभी एंटर करूँगा। तो ये अभी एट प्रेजेंट, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी ये गूगल का जो बॉट है मेरी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर चेक कर रहा है, और हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर है। हाँ, गूगल के अंदर है, तभी तो परफॉर्मेंस के अंदर हमारी वेबसाइट का रिजल्ट आया था कि हाँ हमारी वेबसाइट इतनी बार सर्च इंजन के अंदर आई। अगर सर्च इंजन के अंदर था इसके लिए तो ये यूआरएल बता रहा है कि ये वेबसाइट गूगल के अंदर है, कि गूगल सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट लिस्टेड है। तो अभी मान लो कि कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट बोलेगा कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो क्या करना चाहिए वो टाइम पर हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लोग जब बात करेंगे तभी वो एट प्रेजेंट उसी समय, जैसे ही मैंने ये यहाँ पर ये लिंक को क्लिक किया उसी समय गूगल का जो बॉट है मेरी वेबसाइट पर जाएगा, और वहाँ पर कंटेंट को ये पूरा इकट्ठा चेक करके वो पूरा कंटेंट को लेके वो क्यू में ऐड कर देगा। क्यू में मतलब हमारा जब टर्न आएगा तभी उसके अंदर हमारी वेबसाइट स्टोर हो जाएगी गूगल के अंदर। अभी ये कब होता है, अभी जैसे मान लो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा, तो चलो पहले सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग लिखा है। तो नॉर्मली तो 24 घंटे के अंदर हो जाता है, गूगल बॉट हमारी वेबसाइट से कंटेंट ले लेता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गूगल का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आती है। तो ये वाला जो ब्लॉग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी लिंक, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं सर्च करता हूँ क्या ये यूआरएल मेरी गूगल में है कि नहीं। तो ये देखो ये भी है, ये यूआरएल भी गूगल के अंदर है। तो चलो दूसरा ब्लॉग देखते हैं इसके अंदर। तो दूसरा ब्लॉग यहाँ पर ये वाला है इंस्टाग्राम का, तो इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं चेक करूँगा। तो मैं अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज चेक करके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या मेरा ब्लॉग या मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर भी ये है कि गूगल दिस यूआरएल इज़ ऑन गूगल। तो ये हमें इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर है भी कि नहीं। तो क्योंकि अगर यहाँ पर गूगल में रहेगा तो जब लोग हमारे कीवर्ड से सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट दिखाई देगी और लोग हमारे वेबसाइट पर आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। तो इस तरीके से पता चलता है। तो यहाँ पर भी ये देखो ये भी ब्लॉग मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर है।
तो इस तरीके से नॉर्मली तो मेरे सारे पेजेस गूगल के अंदर है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि हाँ गूगल के अंदर नहीं है, तो वो टाइम पर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में यहाँ पर कवरेज, तो ये कवरेज इशू भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और ये जो बॉट है वो हमारी वेबसाइट पर लास्ट में ये ब्लॉग के ऊपर कभी आया था, तो ये आया था जून की 8 तारीख को शाम को 7:45 के आसपास, 7:39 PM। तो ये इतने बजे गूगल बॉट ने हमारा डेटा लिया है और यहाँ पर पेस्ट किया है। अभी उसका जून 8 ही क्यों, तो उसका रीज़न हम लोग ये चेक करेंगे। यहाँ पर मैं ब्लॉग सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि वो ब्लॉग मैंने किस दिन लिखा था। तो व्हाट इज़ मेटावर्स, तो ये वाला जो ब्लॉग है ये 21 जून को मैंने, 21 जून नहीं, हमने कौन सा यहाँ पर ये देखा, यूआरएल इंस्पेक्शन किसका देखा हमने, अच्छा ये ऑटो कंप्लीट का देखा, ऑटो कंप्लीट का 8 जून को। तो ऑटो कंप्लीट मैंने कभी लिखा था, तो ये तो 13 जनवरी को मैंने लिखा था, तो ये वापस आया है। तो ये उसके अंदर मैंने अगर कुछ चेंजेस किया तो वापस वो आएगा क्रॉल करने के लिए। तो इसके लिए जून को आया था। तो नॉर्मली ये देखो, ये अगर ये पेज, चलो ये यूआरएल को हम लोग चेक करते हैं, ये हमने 21 जून को लिखा था। तो 21 जून को ये बॉट हमारी वेबसाइट पर डेटा कभी लेके गया, तो अच्छा ये है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो ये 23 जून को लेके गया, तो हमारे हमने ब्लॉग कभी लिखा था, हमने 21 जून को लिखा था। और हमारा कंटेंट गूगल के अंदर 23 जून को, मतलब 2 दिन बाद, 48 आवर्स के अंदर। तो नॉर्मली कैसा होता है कि 2-3 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट क्रॉल हो जाती है, वैसे तो 24 घंटे के अंदर ही होती है, लेकिन कैसा है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कंटेंट कितना अपडेट होता है, अगर हम लोग रोज़ लिखते हैं तो रोज़ 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा। लेकिन गूगल को पता है ना, इसके अंदर हम लोग रोज़ कंटेंट नहीं लिखते, इसके लिए यहाँ पर गूगल आराम से आता है, 1-2 दिन लगता है उसको आने के लिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर हमारा कंटेंट क्रॉल होके सर्च इंजन के अंदर स्टोर हो जाता था। तो इस तरीके से ये 2 दिन के बाद आया है, तो ये हमें पता चलता है। और फिर बाद में यहाँ पर पेज को सक्सेसफुली लेके गया और गूगल के डेटाबेस में स्टोर कर दिया था। हमने परमिशन भी दिया था, इंडेक्सिंग अलाउड था कि नहीं, तो हाँ इंडेक्सिंग अलाउड था। फिर यूआरएल क्या था पेज का, तो ये यूआरएल था, इंस्पेक्टेड यूआरएल था। तो उसके बाद में ये जो पेज गूगल में स्टोर हुआ है वो क्यों स्टोर हुआ है, क्योंकि जो अपना पेज था वो मोबाइल फ्रेंडली है, पेजेस मोबाइल फ्रेंडली है, तो इसके लिए। और फिर ब्रेड क्रम्स भी था, बराबर था। और साइक्लिंग सर्च बॉक्स भी बराबर काम कर रहा था। तो मतलब यहाँ पर ये जो कोई भी ब्लॉग जाएंगे यहाँ पर, ये जो सर्च है, तो ये सर्च बॉक्स भी बराबर काम कर रहा है। अभी ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँगा, देखो यहाँ पर मेटावर्स में सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जितने ब्लॉग्स के अंदर मेटावर्स यूज़ किया रहेगा ना, वो सारे ब्लॉग्स अभी रिजल्ट के अंदर आएंगे। तो अभी ये देखो यहाँ पर, ये सबसे ब्लॉग है, ये तो मेन है, व्हाट इज़ मेटावर्स, तो ये तो सबसे पहले आना है। फिर ये दूसरा है, इसके अंदर भी मेटावर्स नाम यूज़ किया हुआ है, ये भी मेटावर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इसके ये भी मेटावर्स है। तो 3 ब्लॉग है जिसके अंदर ये कीवर्ड यूज़ किया है। और लोग हमें ये पता चलता है कि ये 3 ब्लॉक के अंदर मेटावर्स यूज़ किया है, मतलब हमारा जो सर्च बॉक्स है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और मैंने सही में सिर्फ 3 ही लेटेस्ट ब्लॉग्स लिखे मेटावर्स के ऊपर, तो ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये सब कुछ ग्रीन है और ये ग्रीन के अंदर टिक मार्क है, मतलब हमारा सब कुछ परफेक्ट है, तो कोई इश्यू नहीं है ये पेज के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग हमारा सारे पेजेस हम लोग चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन। तो ये एक एक पेज को हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो गूगल के अंदर है भी कि नहीं। अभी दूसरा है यहाँ पर कवरेज इशू, तो हम लोग कवरेज की बात कर रहे हैं। अभी कवरेज का मतलब कैसा होता है कि एक नॉर्मल कवरेज हमको मालूम है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग कवरेज मालूम है कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो
कवरेज एरिया से बाहर है, तो आपको क्या मैसेज आएगा? द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया। मतलब आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो वो कवरेज एरिया के बाहर है। तो मतलब उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, उसको उसका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी उसका कैरियर है एयरटेल वोडाफोन जो भी है उसका, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए वो कवरेज एरिया से बाहर है, वहाँ पर सिग्नल नहीं है। तो सेम वे यहाँ पर भी गूगल की गाइडलाइन जो भी है, गूगल की जो भी पॉलिसीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंदर से हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी एक पॉइंट भी छूट गया तो हमारी वेबसाइट के अंदर वो कवरेज इश्यू का ये प्रॉब्लम बताएगा। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि एक एरर है, तो ये एक एरर क्या है वो हम पता करेंगे। और बाकी यहाँ पर कोई वार्निंग भी नहीं है, और बाकी 316 पेज एकदम परफेक्ट है, और 835 पेजेस एक्सक्लूड किए हुए हैं। अभी एक्सक्लूड क्यों किए हैं? क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब हम लोग वो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल देख रहे थे, उसके अंदर हमने तीसरे लाइन में लिखा था कि डिसअलाउ, और जो भी डायरेक्टरी का नाम है या मतलब जो भी हमें सर्च इंजन में नहीं दिखाना है, तो वो डायरेक्टरी का नाम या वो फाइल का नाम हम लोग लिखते हैं। तो मैं वापस वो फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपका नॉलेज फ्रेश हो जाए और आपको पता चले कि हाँ ये बात है। तो यहाँ पर हम लोग रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल ये वाला, तो इसके अंदर जो तीसरा लाइन था डिसअलाउ, तो मतलब गूगल को हम बोल रहे हैं कि ये जो डायरेक्टरी है ये प्राइवेट डायरेक्टरी है, इसको सर्च इंजन के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाना है। इसका कोई भी रिजल्ट और इसके अंदर ये डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल है वो कोई भी फाइल को टच नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो डिसअलाउ किया है, इसके लिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर बोल रहा है कि इतने पेजेस को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो डायरेक्टरी के अंदर शायद 835 फाइल हो या उससे ज़्यादा हो जो भी है, तो 835 फाइल उसने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने एक्सक्लूड बोला था, डिसअलाउ बोला था। तो इसके लिए इसका कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है, तो वो ठीक है, क्योंकि हमने ही बोला था कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं चाहिए और ये इसको टच नहीं करना है, तो वो छोड़ दिया है। अभी यहाँ पर ये ग्राफ है कि कौन से दिन पे कितना एरर था, तो यहाँ पर नीचे देखो 25 अप्रैल को 83 एरर्स था, फिर यहाँ पर 26, 27, 28, तो यहाँ पर 28 को 86 एरर्स था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। और लास्ट एरर कभी था? तो लास्ट एरर था संडे 22 मई, 4 एरर था। तो उसके बाद में कोई एरर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज की डेट के अंदर भी हमें कोई एरर यहाँ पर आज का डेट के अंदर कोई एरर नहीं बता रहा है। तो अभी ये जो एरर था वो कौन सा एरर था? तो यहाँ पर ये सर्वर एरर था, तो सर्वर 5xx। तो ये 5xx का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कभी कभी हमारा सर्वर डाउन होता है या इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन होती है, तो वो टाइम पर हमें सर्वर का इश्यू आता है कि भाई हम सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब गूगल बॉट हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा और अगर इंटरनेट कनेक्शन डाउन रहेगा, तो वो जहाँ से भी चेक कर रहा है, तो उसको हमारा वेबसाइट का पेज खुलेगा नहीं, तो वो सर्वर एरर बोलेगा कि सर्वर के अंदर कुछ इश्यू है या सर्वर डाउन है या कनेक्टिविटी डाउन है। तो वो टाइम पर हमें ये 500 एरर आता है। तो ये 5xx इसके लिए है क्योंकि ये नॉर्मली 503 होता है या 502 होता है या 501 होता है, तो इसके अंदर से कोई भी एरर हो सकता है। इसके लिए वहाँ पर 5xx लिखा होता है, तो इसके अंदर मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट भी डाउन होता है या पेज अनअवेलेबल है या सर्वर डाउन है, जो भी है, तो इसके लिए 5xx एरर है। यहाँ पर ये जो लिखा है 5xx, तो 501, 02 या 03 उसके अंदर से कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए ये एरर है। तो अभी यहाँ पर एक पेज अफेक्टेड है, और वो कौन सा पेज है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला पेज। तो ये वाले पेज हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पेज है, इसको क्लिक करेंगे तो हमें वो पेज खुलेगा नया विंडो के अंदर, और हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पेज है भाई, हमारे वेबसाइट के अंदर ऐसा पेज तो है नहीं। अच्छा, ये हाउ सर्च इंजन वर्क्स,
तो ये तो ब्लॉग का पेज है, पेज 5। अच्छा, ये पांचवा पेज यहाँ पर ये इस तरीके से। तो ये पेज के अंदर उन्होंने बोला है कि एरर था, मतलब जब उन्होंने चेक किया था तभी यहाँ पर ये पेज खुल नहीं रहा था, लेकिन अभी ये पेज एकदम परफेक्टली खुल रहा है। और लास्ट स्क्रॉल किया था 13 अप्रैल को, तो ये अभी तो फ़िलहाल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है तो हम लोग चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, लेकिन उन्होंने जब चेक किया था तभी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट किया था। तो अभी हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि हमारा जो पेज है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर एक बटन दिया गया है वैलिडेट फिक्स। तो ये पूछता है कि डन फिक्सिंग, मतलब वो हमें पूछ रहा है कि फिक्सिंग हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ हो गया है। तो हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट फिक्स, कि भाई हमने चेक कर लिया है, आप आपके एंड से चेक कर लो। तो हमने चेक किया तो ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, तो हमने ये सिलेक्ट हो गया, ये हमने क्लिक कर दिया और ये सबमिट हो गया। और अभी यहाँ पर बोल रहा है कि वैलिडेशन स्टार्टेड, तो ये आज का डेट है यहाँ पर 1 जुलाई 2022। तो ये बोल रहा है कि आज ये वैलिडेशन स्टार्ट हुआ है, तो मतलब ये 2-3 दिन लगेगा या एक हफ्ता लगेगा गूगल को चेक करने के लिए, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही हो जाता है तो वो हमें एक मैसेज भेजेगा कि आपके प्रॉब्लम का जो आपने इशू रिजॉल्व बताया वो रिजॉल्व हो चुका है। और फिर यहाँ से यहाँ पर ये जो एरर बता रहा है ये एरर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर एरर ज़ीरो बताएगा। तो ये होता है कवरेज इशू। तो ये अभी कोई कवरेज इशू इसके अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये चेक करने के बाद में यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है सर्वर एरर। फिर यहाँ पर सबमिटेड यूआरएल ब्लॉक ड्यू टू अदर 4xx इशू। तो इसके अंदर ये पास है, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सब ज़ीरो है, तो बाकी कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर कोई भी पेजेस अफेक्टेड नहीं है, सब ज़ीरो है, मतलब ये इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो नॉर्मली एरर कौन से टाइप का होता है, तो एक तो ये सर्वर टाइप का एरर होता है, दूसरा सबमिटेड यूआरएल ब्लॉक, मतलब कोई भी जो पेज है हमने ब्लॉक किया हुआ है या सर्वर ने ब्लॉक किया है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक हुआ है, तो गलती से ब्लॉक हो गया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें चेक करना है, तो वो ब्लॉक होने के कारण गूगल वो पेज को क्रॉल नहीं कर पा रहा है, मतलब उससे कंटेंट नहीं ले सकता है अगर उसको ब्लॉक किया है तो वैसा तो कोई इश्यू नहीं है हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पर हमने कुछ भी ब्लॉक नहीं किया है, तो सब कुछ परफेक्ट है। फिर तीसरा है जो है सबमिटेड यूआरएल सीम्स टू बी सॉफ्ट 404। अभी सॉफ्ट 404 और हार्ड 404 के अंदर क्या डिफरेंस है, तो 404 का मतलब ये होता है कि पेज नॉट अवेलेबल। तो सॉफ्ट 404 का मतलब ये होता है कि हाँ पेज तो है लेकिन फ़िलहाल एक्सेसिबल नहीं है, मतलब फ़िलहाल हम लोग वो पेज को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट डाउन हो सकता है या सर्वर डाउन हो सकता है, लेकिन वो पेज है। और हार्ड 404 के अंदर क्या होता है कि हाँ पेज है ही नहीं, तो तभी वो एरर आता है। अभी मैं कोई भी एक पेज खोलता हूँ और वो पेज सर्वर पे है ही नहीं, तो वो हार्ड 404 हो जाएगा। सॉफ्ट 404 तो मतलब वो है सर्वर पे, लेकिन फ़िलहाल वो हम लोग उसको देख नहीं सकते कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको हम लोग सॉफ्ट 404 बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई एरर नहीं है फ़िलहाल, कोई भी पेज अफेक्टेड नहीं है। और फिर लास्ट में है सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड, तो ये हो गया हार्ड 404। तो हार्ड 404 मतलब जो हमने यूआरएल हमने गूगल को सबमिट किया है, जो कौन से फाइल के अंदर हम लोग सबमिट करते हैं सारे यूआरएल, हमारे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग जो भी सबमिट करते हैं हमारे सर्वर पे ऐड करते हैं। यहाँ पर जो भी यूआरएल हमने ऐड किया है वो उसके अंदर गूगल बोलता है कि कौन सा, ये सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड। अगर ये सबमिटेड यूआरएल नॉट फाउंड है तो हमें हमारी एक्सएमएल फाइल में से वो पेज निकाल देना है, या तो वो पेज हमारे सर्वर पे ऐड करना है, गूगल हमारे वेबसाइट का पेज वो ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है
हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जो गूगल डिटेक्ट करता है, इसकी वजह से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर नहीं आती है। नहीं तो हम तो आज तक यही सोचते रहे थे कि भाई हमने तो पूरा एसईओ किया है, एकदम परफेक्टली किया है, लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही है सर्च इंजन के अंदर। ये इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग गूगल सर्च इंजन अगर लोग यूज़ नहीं करते तो उनको ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलेगा कि भाई उसकी वेबसाइट के अंदर गूगल ने क्या प्रॉब्लम देखा है जिसको उसको रिजॉल्व करना है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होता है जो नॉर्मली वेबसाइट को कुछ अफेक्ट भी नहीं करता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई हमने हमारी वेबसाइट तो एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही है, हमारी वेबसाइट के अंदर सारे पेजेस काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या एक एक पेज को चेक किया है, क्या हर एक पेज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है कभी गलती से डिलीट कर दिया लेकिन वेबसाइट तो चालू है। वो एक पेज निकल गया तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट चलना बंद हो जाएगा, तो वेबसाइट तो चलेगी, तो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता करना होता है कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो गूगल ने देखे हैं, और फिर बाद में हमें उसको चेक करना है। तो वो चेक करने के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये होता है कवरेज इश्यू। तो ये कवरेज इश्यूज, इतने कवरेज इश्यूज होते हैं। फिर बाद में होता है साइट मैप। तो ये साइट मैप जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा ये जो साइट मैप है, ये साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं बताया था कि साइट मैप ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होता है। तो हम लोग आज मैं बता देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा जो साइट मैप जो है उसके अंदर कितने पेजेस है और कितने पेजेस डिस्कवर्ड है। तो मेरी वेबसाइट के लास्ट सबमिट किया था यहाँ पर अप्रैल के अंदर सबमिट किया था, अप्रैल के बाद में बाकी ब्लॉग्स भी मैंने सबमिट किया है। खैर वो भी गूगल के अंदर है तो इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ये 21 अप्रैल को मैंने सबमिट किया था, और जून 21 को लास्ट रीड किया था, सक्सेस स्टेटस सक्सेस है। और यहाँ पर 963 डिस्कवर्ड यूआरएल्स है। तो इस तरीके से अभी हमें अगर नया साइट मैप जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गूगल में जाके मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा जनरेट एक्सएमएल साइट मैप। यहाँ पर देखो जनरेट एक्सएमएल साइट मैप है, ये सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला भी है और ऐसे बहुत सारे भी है, तो ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कैसा है क्या है जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग को वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना होता है, तो हम लोग वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं। जो बेस यूआरएल है उसको कॉपी करना है, जो मेन यूआरएल xyz.com तक जो यूआरएल होता है उसको बेस यूआरएल बोलते हैं। तो ये है हमारा बेस यूआरएल और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये स्कैन करना चालू कर देगा। फिर दूसरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। तो एंटर यूआरएल, ठीक है, यूआरएल कहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर एंटर का कोई ऑप्शन, हाँ ये वाला है। और फिर मॉडिफाइड डेट, ठीक है, टुडेज डेट। और फिर बाद में चेंज फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, आवरली, डेली, वीकली। तो हमें बताना है कि हमारी वेबसाइट गूगल बॉट को कितना टाइम के अंदर इनविटेशन देना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ऑलवेज या आवरली या डेली वगैरह जो भी है, वो का कितने दिन के अंदर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करना है। अगर हमारी वेबसाइट के अंदर हम लोग रोज़ डेटा ऐड करते हैं तो हम लोग डेली बोलेंगे। अगर हम लोग एक एक घंटे के अंदर हम लोग कुछ कंटेंट ऐड करते हैं तो आवरली। और कंटिन्यूसली डेटा चालू ही रहता है अपलोड करने का तो ऑलवेजली डेटा मेरा फ्रीक्वेंसी, ये गूगल बॉट आके हर हफ्ते गूगल बॉट आके जो भी नया कंटेंट है वो लेके जाएगा। और डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी तो यहाँ पर 0.1 या 0.9, तो इस तरीके से मैं प्रायोरिटी 1 दे दूँगा। और हाउ मेनी पेजेस डू आई नीड टू क्रॉल, तो यहाँ पर 500 का ही लिमिट बताया गया है, तो 500 है। और फिर बाद में यहाँ पर जनरेट साइट मैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो पहला जो वेबसाइट है उसके अंदर भी देखो स्कैनिंग चालू है यहाँ पर।
अभी तक 23 पेजेस ऐड हुआ है और 15 क्यू में है। और अभी तक 1 मिनट पौने 2 मिनट हुए हैं और अभी भी और एक आध मिनट लगेगा इसको सब करने के लिए। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो फ्री साइट मैप जनरेटर, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जो भी सर्विस अच्छी है आपको लगता है कि जो ज़्यादा पेजेस क्रॉल कर सकता है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जनरेट माई साइट मैप नाउ, तो यहाँ पर भी हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक ही वेबसाइट यूज़ करनी है, सभी में नहीं करनी है। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से हम लोग करते हैं कि अलग अलग वेबसाइट के अंदर। तो मतलब ये सिर्फ वेबसाइट का नाम दिया और हमने बटन क्लिक किया और हमारी वेबसाइट ये थोड़ी देर के अंदर हमारा साइट मैप चालू हो जाएगा, मतलब साइट मैप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम होता है यहाँ पर। तो ये ये देखो ये वेबसाइट के अंदर मेरे ख्याल से ये हो गई है। लिंक्स फाउंड 40 क्रॉलिंग लिंक्स यहाँ पर है। फाउंड लिंक्स फाउंड 30 क्रॉलिंग लिंक्स, 30 क्रॉलिंग लिंक्स, 29 27 25। ओके ठीक है। तो अभी साइट मैप जनरेटेड फॉर, तो अभी साइट मैप जनरेट हो चुका है। और ये फाइल देखो यहाँ पर ये फाइल जनरेट हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो साइट मैप है इसको सेव करना है। तो इसको सेव कर दिया मतलब डाउनलोड करना है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड करूँगा और ये फॉर्मेट रहेगा XML फॉर्मेट, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। और ये फाइल का नाम भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको जो एस है वो भी स्मॉल ही रहने दो। ये इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही इसको सेव कर दो कहीं पर भी। तो ये मेरा लेटेस्ट फाइल सेव हो चुका है। और अभी ये फाइल का मुझे क्या करना है, अभी पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर कितने ये जनरेट हुए हैं, कितने ये हुए हैं। तो ठीक है, इसके अंदर टोटल तो बता नहीं रहा है, तो ठीक है। तो अभी मुझे ये मेरे सर्वर के ऊपर मुझे अपलोड करना है, जो मेरा सर्वर है जहाँ पर सारी वेबसाइट्स लिस्टेड है। तो यहाँ पर मुझे ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर है, इसके अंदर मुझे पेस्ट कर देनी है। अभी आपके पास तो ये कंट्रोल पैनल नहीं है, तो जब भी आप आपकी खुद की वेबसाइट यूज़ करेंगे तभी आपको ये ऐसा कंट्रोल पैनल मिलेगा, जब भी जहाँ पर ये आप ये कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जब भी आप अपलोड करेंगे या क्रिएट करेंगे साइट मैप, तभी वो साइट मैप आप मुझे देना है और मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास साइट मैप रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ठीक है, वो फाइल अपलोड हो रहा है। तो ये फाइल अपलोड हो चुका है। तो अभी यहाँ पर साइट मैप मुझे दिखाई देगा, देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो साइट मैप, और ये XML फाइल, और ये आज का डेट और आज का टाइम 3:17। तो ये अभी 3:17 हुआ है। तो ये अभी अपलोड हो चुका है। तो अभी मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे अपलोड करना है, इसको मुझे कहीं पर भी लिंक नहीं करना है, उसको सिर्फ जनरेट करके सर्वर पे छोड़ देना है, बस उतना ही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो ये हो गया मेरा। तो इसके अंदर 78 लिंक्स फाइंड हुए थे, तो इस तरीके से ठीक है। हाँ, तो ये मेरा के अलग अलग पेजेस है यहाँ पर, ठीक है। कोर्सेस वगैरह जो है अबाउट अस, तो बहुत सारे पेजेस है, जो भी ब्लॉग्स के पेजेस है वो सब इसके अंदर आए रहेंगे। तो ठीक है, सारे पेजेस, रिफंड, प्राइवेसी पॉलिसी, आवर टीम, वो सब पेजेस इसके अंदर आएंगे। तो ये हो गया हमारा काम। तो ये हमारा साइट मैप जनरेट हो गया, यहाँ पर अभी भी जनरेट हो रहा है, तो वो ठीक है, वो होने दो। तो ये हो गया। और इसके बाद में अभी क्या करना है, हाँ, इसके बाद में वापस यहाँ पर जाना है। तो आज हमने अभी एक साइट मैप अपलोड किया है। तो अभी मैं यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर साइट मैप डॉट XML, इसको मैं कॉपी करूँगा। और हाँ, हम लोग साइट मैप में थे, और यहाँ पर मुझे बताना है कि मैंने अभी एक नया साइट मैप अपलोड किया है, वहाँ पर फाइल का नाम देना है साइट मैप डॉट XML।
तो वही फाइल है यहाँ पर sitemap.xml। तो ये फाइल का नाम मुझे यहाँ पर देना है, और जो जहाँ पर मैंने अपलोड किया है वहाँ पर तो helpopedia.com/sitemap तो हमने रूट सर्वर पे पेस्ट किया है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट किया है और इसको सबमिट करना है, तो ये आज का डेट पे सबमिट हो जाएगी। तो ये हो गया सबमिट पीरियोडिकली प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया। तो अभी आज जो हमने अपलोड किया है उसके अंदर कुछ एरर बता रहा है, तो वो एरर क्या है? साइट मैप का। हेलो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। रेशमा, तुम्हें आ रही है? अभी आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर आवाज साफ क्लियर नहीं आ रही हाँ, है। अभी आ रही है? जी नहीं। हेलो, आ रही है आवाज़? रहमान, अभी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। एक मिनट में डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ। सर घड़घड़ा की आवाज है, मतलब फंस फंस के आ रही है आवाज। अभी आ रही है आवाज़? हेलो। अच्छा, आ रही है ना? ओके रहमान, तुम। ओके फाइन। ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पार्सिंग एरर बता रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। वीवर अनेबल टू रीड योर साइट मैप, इट में कंटेन एंट्री वीवर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, प्लीज वैलिडेट योर साइट मैप बिफोर री सबमिटिंग। तो यहाँ पर लाइन 1281, तो इसके अंदर लाइन 1281 के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम। हेलो सर, आ रही है अभी। जी है। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर लाइन 1281 के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ओके। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? अभी इसको चेक करने का मेथड क्या है कि हमें हमारी वेबसाइट पर जाना है। एक सेकेंड। ओके, तो ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर वो फाइल का नाम लिखना है और मुझे वो यूआरएल चेक करना है जहाँ पर ये फाइल है। तो मैं चेक करूँगा साइट मैप डॉट एक्स एम एल। तो अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर भी एरर बता रहा है। दिस पेज कंटेन्स फॉलोइंग एरर, एरर ऑन लाइन 1280 एट कॉलम 7, एक्स्ट्रा कंटेंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा कंटेंट है। तो मतलब वो लास्ट लाइन है। ओके। इसके अंदर वैसे तो मुझे कोई कंटेंट, लास्ट एक्स्ट्रा कंटेंट तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब परफेक्टली ही दिखाई दे रहा है।
सब कुछ बराबर ही है। एक काम करते, वापस इसको अपलोड करते हैं। ओके, तो ये फाइल को डिलीट करते हैं और वापस ये फाइल को अपलोड करते हैं। ओके, और वापस चेक करते हैं। अभी भी सेम एरर आ रहा है। ओके, तो मतलब ये फाइल के अंदर कुछ तो इश्यू है। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर फाइल जनरेट, अच्छा यहाँ पर फाइल अभी तक जनरेट हुआ नहीं है। तो हम लोग पुराना फाइल अपलोड कर देते, जो भी मैंने लास्ट अपलोड किया था, अपडेट किया था, वो फाइल जो अभी हमने खोला था, तो ये वाला फाइल हम लोग अपडेट करते हैं। और राइट, ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। ओके, तो इसके अंदर भी पता नहीं कुछ तो इश्यू है। तो ठीक है, हमें यहाँ पर जनरेट होने के बाद में नया फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो जैसे हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। तो ठीक है, तब तक हम लोग कुछ दूसरा देखते हैं। तो मतलब ये सिर्फ यहाँ पर हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर साइट मैप नया अपलोड किया है, तो आप चेक कर लो। तो ये हमें नॉर्मली तो वो 24 घंटे के अंदर वैसे ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर बाई चांस हमें जल्दी करवाना है तो हम लोग यहाँ पर ये मैन्युअली इस फाइल का नाम ऐड करते हैं और ये सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जब साइट मैप जनरेट करते हैं तो यहाँ पर गूगल को बताते हैं कि हमने नया साइट मैप ऐड किया है। बस ये सिर्फ बताने के लिए, और कुछ नहीं। तो बाकी सब परफेक्ट है, तो इसके अंदर वैसे और कुछ इश्यू नहीं है। और फिर रिमूवल्स, तो ये रिमूवल क्या होता है कि जब भी मुझे यहाँ पर सर्च इंजन के अंदर मान लो कि मेरा जो भी लिस्टिंग है, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, या ये पेज मैंने कभी मेरी वेबसाइट से निकाल दिया है, लेकिन ये पेज अभी भी यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैंने मेरी वेबसाइट से अगर मैंने पेज निकाल दिया है और लोग अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, पेज के नॉट बी फाउंड। तो डेफिनेट है, तो वो उसके वजह से मेरी वेबसाइट का इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर गूगल को बताना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है ये मैंने निकाल दिया है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे न्यू रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और मुझे वो पेज का ये यूआरएल ऐड करना पड़ेगा कि ये पेज मैंने अपनी वेबसाइट से निकाल दिया है। तो ये वाला पेज जो है ये मैं यहाँ पर सर्वर से भी निकाल देता हूँ। यहाँ से अभी जैसे मान लो कि ये फाइल मैंने डिलीट कर दी मेरी वेबसाइट से, तो अभी मुझे गूगल को बताना पड़ेगा कि ये फाइल मैंने अपनी, ये पेज मैंने अपनी गूगल वेबसाइट से निकाल दिया है। तो यहाँ पर ये पेज मैं ऐड कर दूंगा और रिमूव दिस यूआरएल ओनली, और उसके बाद में नेक्स्ट करूँगा। और फिर बाद में ये सबमिट रिक्वेस्ट, तो ये सबमिटिंग रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये यूआरएल यहाँ पर ये निकल गया है, तो ये अभी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है। तो ये जैसे ये गूगल को पता चलेगा वैसे ही ये सर्च इंजन के अंदर से ये यूआरएल निकाल देगा। तो ये जो रिज़ल्ट हमें जो भी दिखाई दे रहा है, अगर जो रिज़ल्ट हमें नहीं चाहिए तो ये रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा। हमारी वेबसाइट का पेज, हाँ, किसी और का पेज नहीं। नहीं तो सब लोग दूसरे लोगों का पेज निकाल देंगे कि भाई उसका ही पेज सबसे टॉप पर रहे, ऐसा नहीं होता है। तो
वैसे हमें जो भी पेज हमारी वेबसाइट से निकालते हैं वो पेज हमें गूगल को बताना पड़ेगा, नहीं क्योंकि अगर वो पेज वहाँ पर आया तो और वो पेज नहीं खुला तो हमारी वेबसाइट का बैड इंप्रेशन होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर गूगल को बताते हैं कि जो भी ये पेज है वो निकाल देना है, तो वो निकाल देते हैं गूगल। तो ये रिमूवल है। उसके बाद में पेज एक्सपीरियंस, तो पेज एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इनफ डेटा नहीं है, तो मतलब उसके लिए बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए। तो ये कभी कभी कोई नया रिपोर्ट भी होता है तो इसके अंदर वो डेटा नहीं होता है, तो नॉट इनफ ट्रैफिक इन लास्ट 90 डेज ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन। तो ठीक है, तो कुछ इशू नहीं है। तो जब डेटा आएगा तभी हम लोग चेक कर सकते हैं, जब तक डेटा नहीं है तो इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और फिर बाद में आता है कोर वेब वाइटल्स। तो ये कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, जो मैंने बताया था वेबसाइट की स्पीड और स्कोर के बारे में। तो अभी यहाँ पर हम लोग ट्राई पेज स्पीड का वो हम लोग करते हैं तो एक नया पेज आ जाता है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम हम लोग ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो हमें डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट का स्कोर क्या है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना अच्छा रहेगा हमारी वेबसाइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी पेज स्पीड रन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर पता नहीं कुछ तो एरर आया, तो ये कभी कभी ये वेबसाइट के अंदर, ये गूगल का ये जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। तो ठीक है, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हम्म, इसको कुछ तो इश्यू हो रहा है। तो ये बेसिकली एक पेज है जिससे हमें स्कोर पता चलता है। तो अभी इसके अंदर नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं, दूसरा कोई वेबसाइट रहेगा तो। तो यहाँ पर भी टेस्टिंग वगैरह सब बताते हैं। यहाँ पर भी वेब ये स्पीड बताता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे और हमें कहाँ से टेस्ट करना है। तो जो हम हमारी वेबसाइट का जो टारगेट ऑडियंस है उसके उससे जो भी नज़दीक सर्वर है या कंट्री है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग एशिया, जापान, टोक्यो यूज़ करेंगे और स्टार्ट टेस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ से पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट का कितना स्कोर है, क्या है, कितना स्पीड में खुलता है। तो ये सब चीज़ हमें यहाँ से पता चलता है। यहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग हमारी वेबसाइट का नाम ऐड करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये जो वेबसाइट है ना, ये तो गूगल की है, तो ये बेस्ट वेबसाइट है। तो ये हमें यूज़ करना चाहिए। तो कभी कभी वो काम नहीं करती है, तो इसके लिए वो ठीक है, वो थोड़ी देर बाद ट्राई करना चाहिए। तो ओके, ठीक है। तो हम लोग दूसरा वेबसाइट चेक करते हैं अभी जहाँ पर हमने ऐड किया है। तो अभी ये हो रहा है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर परफॉर्मेंस 30% बता रहा है, स्ट्रक्चर 71% बता रहा है। ये सब ठीक है। 36 मिली सेकेंड बता रहा है, तो अभी इतना टाइम लग रहा है हमारी वेबसाइट को खुलने के लिए। तो ये जो है ये बहुत इशू है इसके अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग इश्यूज बताता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसके अंदर हमें
यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन लिखा है वो सारे सॉल्यूशन हमें करने चाहिए, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन अगर हमें नहीं मालूम है तो डेवलपर से करना चाहिए। कौन सा जो है कितना सीरियस है वो यहाँ पर पता चलेगा। हाई मतलब सीरियस है, मीडियम हाई मीडियम वगैरह ये सब चीज़ इससे हमें ये सब चीज़ पता चलती है। और फिर यहाँ पर समरी है, ये परफॉर्मेंस है तो मच लॉन्गर टाइम, तो ये ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है साइट को खुलने के लिए। इंटरेक्टिव टाइम करने के लिए 15 सेकेंड लगता है, कि टोटल ब्लॉकिंग टाइम 36 मिली सेकेंड्स। स्पीड इंडेक्स, तो ये स्पीड का स्कोर है। तो इसकी वजह से हमारी वेबसाइट मान लो कि थोड़ी स्लो चल रही है, इसकी वजह से ऐसा इश्यूज आते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो हमने इमेजेस वगैरह यूज़ किए वो सारी इमेजेस छोटे साइज़ के रखने चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी खुल जाए। तो ऐसे अलग अलग इश्यूज़ यहाँ पर पता चलता है, तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने हैं। तो ये सारे चीज़ ग्रीन होने चाहिए। तो अभी ये ग्रीन कैसे हो, तो ये एक एक चीज़ हम रिजॉल्व करते हैं तभी हमें ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो स्ट्रक्चर वगैरह है, फिर वाटरफॉल, तो ये वाटरफॉल तो ठीक है, वो सब सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। वीडियो वगैरह, तो वीडियो तो हमारी वेबसाइट पर नहीं है। फिर बाद में हिस्ट्री, तो यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह पता चलता है पहले का। तो ये हिस्ट्री हमें अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं, हमें सिर्फ समरी और परफॉर्मेंस से मतलब है। तो मेन चीज़ परफॉर्मेंस यहाँ पर है, तो ये सब चीज़ ग्रीन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो उसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लर्न मोर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सब बताएगा। तो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं तो हमें पता चलता है। यहाँ पर देखो, परफॉर्मेंस ग्रेड 71 बता रहा है यहाँ पर। पेज साइज 2.3 MB बता रहा है। लोड टाइम 18 सेकेंड्स बता रहा है। 18 सेकेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा है। रिक्वेस्ट 124, तो ये लोड टाइम जो है, ये लोड टाइम 5 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। गूगल बोलते हैं कि अभी जो लेटेस्ट अब 5 सेकंड के अंदर खुलनी चाहिए। अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं खुलती है तो हमारी वेबसाइट का रिज़ल्ट जो है वो गूगल से निकल जाएगा। तो ये अभी इसकी वजह से मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ है, मेन चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 18.68 सेकेंड्स बता रहा है यहाँ पर, तो ये ठीक है। तो ये इश्यू हमें सॉल्व करना चाहिए। तो ये लोड टाइम, तो सारे इमेजेस वगैरह जो हमने यूज़ किया है उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इमेजेस वगैरह छोटे करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ होता है इसके अंदर। एक सेकेंड। ओके, सो या तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, उसके बाद में ही जाके हमारा काम, हमारी वेबसाइट जो है वो स्पीड में चलेगी। और ये सारे रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तभी हमारा ये जो पेज स्पीड इंसाइट्स है वो एकदम परफेक्टली काम करेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सब यहाँ पर होता है। तो ये कोर वेब वाइटल्स है। तो हमारा पेज का जो मोबाइल पे खोलते हैं और वेबसाइट पर खोलते हैं, तो डेस्कटॉप पे खोलते हैं, तो दोनों के अंदर अच्छे स्पीड के अंदर खुलना चाहिए। वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर खुल जाना चाहिए। अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं खुलता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है वेबसाइट के अंदर। तो वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। फिर मोबाइल यूजेबिलिटी मतलब मोबाइल से अगर हम हमारा वेबसाइट देखते हैं तो उसके अंदर अगर कुछ इश्यू रहेगा, कुछ एरर आता है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट एकदम परफेक्टली बता रही है, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर सभी एरर ज़ीरो है। यहाँ पर कोई भी पेज के अंदर कोई भी एरर नहीं है। नहीं तो यहाँ पर बताएगा कि कौन से पेज के अंदर कितना एरर है। तो यहाँ पर कोई भी पेज के अंदर एरर नहीं है, इसके लिए ज़ीरो ज़ीरो बताता है। तो नॉर्मली एरर कैसी रहती है कि टेक्स्ट टू स्मॉल होता है, या क्लिकेबल एलिमेंट्स मतलब दो लिंक बाजू बाजू में है, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर बाद में यहाँ पर कंटेंट वाइडर देन द स्क्रीन, तो मतलब हमारा जो कंटेंट होता है वो लेफ़्ट स्क्रीन और राइट स्क्रीन का एज होता है, उससे बाहर चला जाता है। तो हमें लेफ़्ट राइट एरो यूज़ करना पड़े, लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बार यूज़ करना पड़ता है। तो वो अच्छा नहीं है, तो वो हमें देखना चाहिए।
और फिर व्यू पोर्ट नॉट सेट। तो व्यू पोर्ट रहेगा तो मतलब हमारी वेबसाइट कोई भी स्क्रीन के ऊपर एकदम परफेक्टली दिखाई देगी। अभी जैसे मेरी वेबसाइट कोई भी स्क्रीन साइज से देखोगे तो एकदम परफेक्ट दिखाई देगी, चाहे फिर वो आप 50 इंच का टीवी में देखो या छोटा 4 इंच का मोबाइल के अंदर देखो, सबके अंदर परफेक्टली दिखाई देगी। तो कोई भी स्क्रीन साइज के अंदर परफेक्टली दिखाई देती है, तो उसको व्यू पोर्ट सेट करना बोलते हैं। तो व्यू पोर्ट सेट ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वो हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली सेट होता है, वो बिल्ट इन होता है, तो हमें उसके अंदर कुछ सेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ऐसे एरर्स आते रहते हैं। तो ये मोबाइल यूजेबिलिटी, तो मोबाइल के अंदर कुछ इश्यू नहीं है। ब्रेड क्रम्स के अंदर भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सब ब्रेड क्रम्स के अंदर भी ज़ीरो एरर है। नहीं तो यहाँ पर बताता कि ब्रेड क्रम्स के अंदर क्या एरर है। तो यहाँ पर सिंस कोई एरर नहीं है, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। तो ब्रेड क्रम मतलब मैंने जो अमेज़ोन पे बताया ना वो रोड मैप, उसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर साइट लिंक सर्च बॉक्स, तो उसके अंदर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि हमारा साइट लिंक सर्च जो सर्च बॉक्स है हमारी वेबसाइट पे, ये जो मैंने बताया था ये सर्च बॉक्स, तो ये सर्च बॉक्स भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हमने टेस्ट करके देखा तो बराबर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चलता है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। तो मैनुअल एक्शन के अंदर मतलब अगर गूगल को ऐसा लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मैनुअल एक्शन हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ के भी नहीं है, मतलब हमारी वेबसाइट पे कोई वायरस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए नहीं, तो अगर वायरस रहेगा या मेलवेयर रहेगा, स्पाईवेयर रहेगा, ऐसा बहुत सारा ये एडवेयर वगैरह ऐसा बहुत कुछ रहता है, तो कभी कभी ऐसा ये होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर कोई हैकिंग कर सकता है या ऐसा कोई पोर्ट खुला है जिसके थ्रू कोई लोग हैक कर सकता है। तो ये सारा चीज़ इसके अंदर है, तो सिक्योरिटी इश्यूज कोई भी नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर। फिर बाद में यहाँ पर लीगेसी टूल्स, तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर हाँ ठीक है। तो ये इंटरनेशनल टारगेटिंग है। तो ये इंटरनेशनल टारगेटिंग क्या होता है कि इंटरनेशनल टारगेटिंग मतलब हमारी वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अभी मेरी वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस इंडिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो मैंने इंडिया रखा है क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है मेरी वेबसाइट के, तो वो इंडिया से ज़्यादातर लोग हैं, तो इसके लिए मैं इंडिया यूज़ करूँगा। और लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो एचरेफ लैंग टैग्स। तो ये एचरेफ लैंग टैग्स जो है, तो ये क्या होता है कि लैंग्वेज का एक कोड होता है, वो हमें हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना होता है, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो ये एक लाइन का कोड होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते लैंग्वेज टैग्स। ओके, हाँ, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एचरेफ लैंग टैग। तो ये एक लाइन का कोड होता है जो हमें हमारी वेबसाइट पे यूज़ करना होता है। तो ये इससे क्या होगा कि जब लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे कोई दूसरे कंट्री से, मान लो कि कोई अरबिक कंट्री से आता है, तो वहाँ तो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होता है ना, वहाँ पर उनका अरेबिक लैंग्वेज होता है, तो वो लोग वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हमारा लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, और वो उनके लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो वेबसाइट ट्रांसलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वो यूज़ करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसा एच लिंक रिलेटिव। तो ये ऐसा एक हमें टैग ऐड करना होता है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अगर ये टैग हमने परफेक्टली हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया तो कुछ इश्यू नहीं है। तो ये ठीक है, तो ऐसा एक टैग हमें यूज़ करना है। तो ये लाइन इसके अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल आना चाहिए, और ये वी तो ये यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ई एन। ई एन मतलब इंग्लिश होता है, और यहाँ पर ई एन, और ये यू एस यूज़ करेंगे। ई एन यू एस तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश।
हम लोग यूज़ करेंगे। तो बस इतना चेंज करके ये इसको हम लोग कॉपी करके हमारे वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाता है। तो इसके लिए प्लगइन्स भी अवेलेबल होता है, तो आप प्लगइन यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ा कोडिंग वाला काम होता है। तो ये अगर आपने कुछ मिस्टेक किया तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, आपको वेबसाइट के index.html फाइल के अंदर यूज़ करना होता है। तो ये ठीक है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस हमने सेट कर दिया और लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया है, तो ये ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर दूसरे कंट्री के लोग अगर हमारी वेबसाइट उनके लैंग्वेज में देख सकते तो हमें ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। इसके लिए हम लोग को ये यूज़ करना चाहिए। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हमने यूज़ किया तो बेटर है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये साइट मैप जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। तो ये हम लोग साइट मैप को डाउनलोड कर लिया। ओके, और फिर बाद में ये पहले वाला जो बाकी था ना वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज है, तो और हमने इंटरनेशनल टारगेटिंग देखा, और फिर ये मैसेजेस। अभी जब आप लोग ये सर्च कंसोल यूज़ करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा मेनू है, कौन से जगह पर जाना है, कौन से जगह पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है साइट के अंदर। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी मेनू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर मैसेजिंग में आना है, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो जैसे अपना गूगल अपने को ईमेल करता है ना, तो वैसे ईमेल भी आता है। और यहाँ पर मैसेजिंग के अंदर भी आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ये मैसेजिंग के अंदर या भाई यहाँ पर मैसेज होता है पेज इंडेक्सिंग इश्यूज। तो यहाँ पर हमें जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसा सॉल्व करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेनू के अंदर मुझे कहाँ पर जाना है। तो हमें कुछ भी इश्यूज का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये इशू सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इसको ये बटन को क्लिक करो और सीधा वो पेज पर हम लोग पहुंच जाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या इश्यूज़ है। तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व है, इसके लिए यहाँ पर ये कुछ बता नहीं रहा है, तो ये ठीक है, ये चलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो भी मैसेजेस हमें मिलते हैं वो मैसेजेस को हम लोग चेक करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखो न्यू मोबाइल यूजेबिलिटी इश्यूज डिटेक्टेड, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये उसका डिटेल में पता चलता है, लेकिन हम लोग को ये ब्लू बटन क्लिक करके वो पेज के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, इसके लिए यहाँ पर अभी ज़ीरो बता रहा है, तो वो पहले का इशू है। तो ठीक है, तो हम उसको गूगल को रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हमें मैसेजेस मिलते हैं ऐसा कि हमारे प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट के अंदर। आपको एक ईमेल भी मिलेगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल रहेगा ना, यहाँ पर आपने जो लॉगिन करने के लिए जो ईमेल यूज़ किया रहेगा ना, वो ईमेल के ऊपर आपको ईमेल भी आएगा कि आपको ये इश्यूज, ये यही सब्जेक्ट लाइन से आपको ईमेल आएगा जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा ना वो। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, तो यहाँ पर वो भी हमें बताता है कि ये यहाँ पर देखो पेज इंडेक्सिंग इश्यू सक्सेसफुली फिक्स्ड फॉर दी वेबसाइट helpopedia.com। तो मतलब वो बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो तरीके से ये मैसेजेस आप रीड करके आप जाएंगे तो आपको कुछ इशू ही नहीं, आपको सब बाद में धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे और आप चेक करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपको ये मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ये मॉड्यूल आ जाता है फिर बाद में आप अपने हिसाब से आप कोई भी चीज़ क्लिक करके एक्सप्लोर करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोग ये मैसेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कहाँ पर जाएंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और बस सिर्फ ये मैसेजेस के ऊपर क्लिक करना है और आपको बस वो जगह पर लेके जाएगा ब्लू बटन। तो ये होता है मैसेजेस। और उसके बाद में वेब टूल्स, तो वेब टूल्स के अंदर तो अभी तो कुछ खास टूल्स नहीं है, इन लोग ने सारे टूल्स निकाल दिए। तो ये पेज क्यों रखा है वही समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली उनको वो निकाल देना चाहिए। तो ये निकाल देंगे मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के अंदर। फिर बाद में लिंक्स,
तो लिंक्स का क्या मतलब होता है यहाँ पर, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। तो हम लोग जब एसईओ कर रहे थे उसके अंदर हम लोग इंटरनल लिंक्स कर रहे थे और एक्सटर्नल लिंक्स भी कर रहे थे। तो इंटरनल लिंक्स तो हमारी वेबसाइट के अंदर ही दे रहे थे, अलग अलग पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो एसईओ है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ कैसा है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारी कितनी लिंक है, कौन से पेज के लिए कितनी लिंक्स है, इंटरनल लिंक्स कितनी है, एक्सटर्नल लिंक्स कितनी है। और ये सब चीज़ हमें पता चलता है। यहाँ पर देखो इंटरनल लिंक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ये जितना क्वांटिटी है ना वो उतना क्वांटिटी इधर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहना चाहिए। और ये दिन ब दिन बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉप लिंक्ड पेजेस, तो ये सारे पेजेस के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स है, तो ठीक है। और यहाँ पर टॉप लिंकिंग साइट्स, तो हमने जो ऑफ पेज एसईओ किया है, कौन से पेजेस के लिए हमने किया है उसका लिंक्स यहाँ पर पता चलता है। तो ये सारे वेबसाइट्स का नाम हमें पता चलेगा कि कौन से वेबसाइट्स के अंदर हमने कितना कितना ऑफ पेज एसईओ किया है। मतलब हमने जो देखा था ना, हमारा जो एडवर्टाइजिंग कंटेंट जो हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, मैंने मेरे ख्याल से आपको दिया था, एक नोटपैड दिया था जिसके अंदर कंटेंट दिया था आपको ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, आपको वो सब बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर रजिस्टर करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए और एक एक्सेल फाइल के अंदर सेव करने के लिए, वो वाला चीज़ कि हम लोग कौन सी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारा पोस्ट कर सकते हैं। और उसका सब रिपोर्ट्स हम लोग एक्सेल फाइल के अंदर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर देखो गूगल के अंदर इतना लिंक्स है, ये दूसरा एक वेबसाइट है उसके अंदर 30 है, फिर ट्रस्ट इंडेक्स 28 है, फिर मीडियम डॉट कॉम के अंदर 13 है, नीट पे डॉट ओ आर जी के अंदर 11 है। तो इस तरीके से कौन सी वेबसाइट पर कितना है, तो जो टॉप 5 वेबसाइट होती है तो वो यहाँ से पता चलता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद में टॉप लिंक टेक्स्ट, तो हमने कौन से टेक्स्ट को हमने सबसे ज़्यादा लिंक किया है, तो ये वाले सारे टेक्स्ट है जो हमने लिंक किए हैं। तो ये इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक से हमें पता चलता है कि हमारा ऑफ पेज एसईओ कितना स्ट्रांग है। उसके बाद में यहाँ पर सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स के अंदर वैसे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि यू आर अ वेरीफाइड ओनर, ये हमारा यूज़र्स एंड परमिशन, तो हमें पूरा परमिशन है यहाँ पर। और फिर बाद में एसोसिएशन, तो हमारा ये ईमेल अकाउंट यूट्यूब के साथ में भी जुड़ा हुआ है। और चेंज ऑफ एड्रेस, तो कभी फ्यूचर के अंदर हमें हमारा यूआरएल अगर हम लोग चेंज करना है, आज हेल्पोपीडिया डॉट कॉम है, कल अगर हेल्पोपीडिया डॉट इन हो करना है, तो आज तक की जितनी मेहनत है वो सब वेस्ट जाएगी, वो तो नया डोमेन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डोमेन को निकाल कर वो जो नया डोमेन है उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। और इसका जितना भी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ जो भी है, वो सब हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि हमें जो ओरिजिनल डोमेन है वो अगर हमें बेचना है, तो बेचेंगे तो सारा मेहनत का फल तो जिसने ख़रीदा उसको मिलेगा ना। तो मेहनत तो हमारा है ना, 16 साल का मेहनत है मेरा ये डोमेन के ऊपर। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर गूगल को बोलूँगा कि अभी मैंने अपनी वेबसाइट चेंज कर दी है। तो यहाँ पर वेबसाइट हम लोग चेंज करनी है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ एड्रेस हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी सर्च इंजन रिजल्ट है उसके अंदर हमारी वेबसाइट का नाम चेंज हो जाएगा। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो वो सब कंटेंट है यहाँ पर, चेंज ऑफ एड्रेस वगैरह। तो ये क्रॉल स्टैट्स, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था परफॉर्मेंस के अंदर कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से दिन पे कितने बजे गूगल बॉट्स आए थे। तो ये सब उसका रिजल्ट है, क्रॉल इंडेक्स, इंडेक्सिंग क्रॉलर्स और प्रॉपर्टी एडेड। तो अगर ये वेबसाइट को मुझे सर्च कंसोल से निकालना है, मान लो कि ये वेबसाइट मैंने बेच दी, तो यहाँ पर मैं रिमूव प्रॉपर्टी करूँगा, तो ये प्रॉपर्टी मेरी ये सर्च कंसोल से हमेशा के लिए निकल जाएगी, जब तक मैं वापस ऐड ना करूँ। मैं वापस ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं 50 बार निकाल के 50 बार ऐड कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो जस्ट अगर मुझे निकालनी है इसके अंदर से तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ होता है इसके अंदर। और बाकी हाँ, ये सबमिट फीडबैक, तो ये तो अगर गूगल को कुछ फीडबैक सबमिट करना है तो आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, गूगल को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, रिप्लाई आने की कोई उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि पर्सनली गूगल किसी को रिप्लाई नहीं देता है।
तो वो होता है सेटिंग्स। तो इसके अंदर और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, सबमिट फीडबैक वगैरह। हाँ, और अबाउट सर्च कंसोल तो ये सिर्फ आपको एक छोटा सा हेल्प फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप यहाँ पर थोड़ा कुछ कीवर्ड समझ टाइप कर सकते हैं, जैसे कोर वेब वाइटल्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर अगर आप वो सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में रिजल्ट मिलेगा, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हेल्प फाइल्स है। तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, बट जस्ट नेसेसरीली अगर यूज़ करना है तो ठीक है। बाकी कुछ इश्यूज यहाँ पर नहीं है। और ये कंप्लीट होता है हमारा गूगल सर्च कंसोल। तो अभी सोचो कि हमने इतना सब कुछ यहाँ पर पता किया कि वेबसाइट के अंदर कितने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर सोचो कि हमने कभी सर्च कंसोल यूज़ ही नहीं किया होता तो क्या होता था। तो ऐसा ही कुछ होता था कि हमें कभी पता ही नहीं चलता था कि हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारा सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही है। हमने इतना एसईओ किया, हमने इतना कुछ किया, तो फिर भी हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रही है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो गूगल के जितने भी, मतलब जितने भी लोगों के पास वेबसाइट है या मैनेज करते हैं, उनको हमेशा गूगल सर्च। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ठीक है। तो यही था इतना गूगल सर्च कंसोल। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। सर वो हाई पेज रैंक जो है ना उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, तो अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ, उसके अंदर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। हम्म। इसको राइट राइट करना ताकि हो गया पूरा। हाँ, क्या? एंटर करो या राइट क्लिक करो। अच्छा, आपका आवाज़ नहीं आ रहा, माइक्रोफोन बाजू में रखिए। हाँ सर। सर यूआरएल जो होता है ना हाँ, उससे कैसे लिंक करेंगे? आप गूगल में सर्च करेंगे हाई पेज रैंक सोशल मीडिया वेबसाइट्स, तो उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी। उसके अंदर एक एक वेबसाइट में जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर पोस्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल दिया है, बस वही कंटेंट उसके अंदर पोस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। सर वो हाई पेज रैंक जो है ना उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, तो अपना अकाउंट बनाना पड़ता है उसमें। जी। और कोई डाउट्स? ठीक है, तो तो फिर फिर आज लिंक का कैसे सेशन यहाँ पर उसमें एंड मतलब करते हैं। गुड बाय। ऐड करेंगे लिंक? या या यूआरएल जो होता है ना, सर यूआरएल जो होता है ना वो उस पे कैसे लिंक करेंगे? जी। ओके सर। हो ते वेगळं आहे. हे वेगळं ऑप्शन. ही आल्यावर नहीं सर। जी। बाय सर।